السلام علیکم ناظرین شام 7 بجے تو کوشر خبر نامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ جموں کشیر میں سڑک حادثن دوران انسانی زو زائے سپدن سلسلہ بدستور جاری جنوبی کشیر ہندس ضلع شپینس مز تازہ حادثہ سرکاری وستاد جاں بحق الیکشن کمیشن طرف نئی دلی مز پریس کانفرنس سانز جموں کشیر مز اسمبلی انتخاب عمل مز انس حوالہ تاریخن ہند اعلان انتخابی ضابطہ اخلاق جموں کشیر مز نافذ انتخاب عمل مز انس حوالہ تاریخن ہند اعلان صحیح قدم الائنس حوالہ یہ پارٹی لیڈرن ست صلاح مشورہ کرنے ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشیر مز یہ سڑک حادثن دوران انسانی زو زائے سپدن سلسلہ بدستور جاری تتہ آج جنوبی کشیر ہندس ضلع شپینس مز تازہ حادثہ پیش آمت یتھ دوران زٕ نوجوان جاں بحق سپد ونہ ضلع شپین کس ہبڑی پورہ علاقس مز آز اکس موٹر سائیکلس تو آلٹو گاڑی درمیان ٹکر سپدمت یتھ دوران موٹر سائیکلس پہ سوار وستاد شدید زخمی سپد یدوے زخمی وستاد علاج معالجہ باپت ہسپتالس مز داخل کرنا آئی تاہم دشوے زخمن ہز دگ نیوترن کن جاں بحق سپدمتن وستادن ہز شناخت یہ ریاض احمد ڈار کندلن تو سجاد احمد شاہ نیو کالنی لرگام سندرنگ کرنے آئی تت پولیس طرف معاملس حوالہ کیس درج کر تحقیقات تہ شروع کرنے آمت نئی دلی میں آز الیکشن کمیشن طرف پریس کانفرنس ساز کرنا آمت یتھ دوران جموں کشیر مز اسمبلی انتخاب عمل مز انس حوالہ تفصیلات فراہم کران ون آو 70 لچھ کھت زیادہ ووٹر جموں کشیر مز یمن مز 46 لچھ کھت زیادہ زنہ 42 لچھ کھت زیادہ مرد شامل یل زن ات موقع پہ ون آو الہ پل 3,61,000 ووٹر تم یم زن گۄڈنِک پھر پنہ ووٹک استعمال کرن تو 20 لچھ کھت زیادہ نوجوان کرن یمہ پھر ووٹنگ عمل مز شرکت تفصیلات فراہم کران ون آمت جموں کشیر مز 90 اسمبلی حلقہ یمن مز 64 جنرل 7 SC تو 9 ST اسمبلی حلقہ شامل پریس کانفرنس دوران ون آمت جموں کشیر مز 9,169 جائن پہ 1,838 پولنگ مرکز قائم کرنے یمن مز 2,332 اربن تو 9,506 رورل علاقن مز قائم کرنے یل زن 18 ستمبر انتخاب شروع سپدن تو 1 اکتوبر یم انتخاب اند واتن. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban,
Doda on this side, Jammu side, and Anandnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur, Samba, and the Katua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. نیشنل کانفرنس پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ الیکشن کمیشن کے فیصلہ خیر مقدم کران ونمت زِ یہ اخ صحیح قدم یل زن تمو وون زِ تم نین یمن اسمبلی انتخابن مز حصہ یل زن تمو وون زِ الیکشنن مز حصہ نین باپت نیشنل کانفرنس پارٹی پور پٲٹھۍ تیار تہ الائنسس حوالہ یہ پارٹی ست صلاح مشور کرنے پتہ حتمی فیصلہ نین. میں سمجھتا ہوں یہ بہت مبارک دن ہے. کل انڈیپینڈنس دن تھا اور آج اور مبارک دن یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے آج اناؤنس کر دیا ہے کہ جموں کشمیر میں الیکشن ہوں گے اور 3 فیزز میں ہوں گے. پہلا فیز 18، دوسرا فیز 25 کو ہوگا، تیسرا فیز جو ہے 1 کو ہوگا اور 4 اکتوبر کو رزلٹ نکلے گا. میں صرف الیکشن کمیشن سے یہ امید کروں گا جو بہت ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دیں، سب پارٹیز کو. یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ دے دیں گے. اور خاص کر جو انہوں نے آفیسرز کو راتوں رات چینج کیا ہے، اس کا مطلب انہیں معلوم تھا یہ اناؤنسمنٹ آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس کو بھی دیکھے ان افسروں کو کس بنا پہ چینج کیا گیا ہے. سر 3 فیز میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور جموں کشمیر جیسی اسٹیٹ کے اندر آپ کو لگتا ہے سمے کم ملا ہے؟ اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے کہ سمے ملا. اب پتہ لگے گا کون تیار تھا کون تیار نہیں. ڈاکٹر صاحب کیا آپ چناؤ لڑیں گے؟ اس میں کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ عمر صاحب نہیں لڑیں گے؟ وہ نہیں لڑیں گے. آپ لڑیں گے؟ میں لڑوں گا. جب اسٹیٹ ریسٹور ہوگا میں اتر جاؤں گا اور عمر صاحب اس سیٹ سے لڑیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ الائنس کرنے جا رہے ہیں؟ الائنس کا اسی لیے تو میں واپس آ رہا ہوں کیونکہ پارٹی ہیز ٹو میٹ. اس سے فیصلہ ہوگا کہ الائنس ہوگی یا نہیں. This will not stay. When the statehood is restored, statehood means all power to the state. We're not Delhi. We are Jammu and Kashmir. آپ ہماری عزت لوٹنا چاہتے ہیں؟ کیا ڈوگروں کی عزت نہیں ہے؟ کشمیریوں کی عزت نہیں ہے؟ پہاڑیوں کی عزت نہیں ہے؟ گجروں کی عزت نہیں ہے؟ کیا ہمارے اوپر افسر رہیں گے؟ کون سی ریاست؟ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں اپنے مادھیم سے، کیسے پردھان منتری سے کہتا ہوں، کیسا لگے گا ان کو اگر گجرات میں ڈیوٹی بنائی جائے اور وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہو؟ کیسا لگے گا ان کو؟ کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اس کا جواب دینا چاہیے. As far as Sajjad is concerned, as Bukhari is concerned, they're already part of BJP. So what is the problem? As far as Azhar is concerned, he has said he is not going to be there in the fight. There's no problem. نیشنل کانفرنس پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ الیکشن کمیشن کس فیصلس حوالہ کت کران وونمت گۄڈنِک پھر کم فیزن مز اسمبلی انتخاب عمل مز ان یس زن سیاسی جماعتن باپت اخ بوڑ چیلنج. تاہم تمو وونمت نیشنل کانفرنس انتخابن مز حصہ نن باپت تیار تو ین ولس وقتس مز یہ ایلنسس حوالہ تہ حتمی فیصلہ نن. تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے جموں کشمیر میں
असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफ़रों पे जो है एक उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्ज़ामिन करना चाहिए और जो ट्रांसफ़र्स उनके गाइडलाइन से बाहर हैं उनको रोक दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पिछले 1-2 साल में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर वो जिन्होंने बीजेपी और बीजेपी के एजेंडा की मुखालफत की, हम लोगों की जो सिक्योरिटी कम की गई है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से पिछले दिनों विड्रॉ की गई। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। इलेक्शन कमीशन तरफ ये जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अनस हवाले तारीखन हुंद ऐलान करना आव तज PDP तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद साज करना आमुत यथ दौरान इल्तिजा मुफ्ती अमि फैसलुक खैर मकदम करान वोन जे यह अख सही कदम, ताहम तिमो कयान खदशातन हुंद ते इजहार कोरमुत। थैंक यू फॉर कमिंग हियर ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। जैसा कि आप जानते हैं, आज ECI ने डिक्लेयर किया कि कश्मीर में अब 3 फेजेस में इलेक्शन होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 18th of September। PDP वेलकम्स दिस मूव, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। आप जानते हैं जो रियासत का एक सेमी ऑटोनमस स्टेटस था, हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, अपना झंडा था, अपने रेजिडरी पावर्स थे, वहाँ से यूटी का सफ़र आप लोग खुद जानते हैं। पिछले 5 साल में यहाँ हर एक जम्मू कश्मीर रेजिडेंट के फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, डेमोक्रेसी को भी सस्पेंड किया गया। तो जो इलेक्शन 6 साल पहले होना चाहिए था, वो अब 6 साल बाद आपको इतना वक्त क्यों लगा? तो मेरा पहला वही सवाल है। बट ऑब्वियसली वी वेलकम दिस मूव बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ जब से आर्टिकल 370 हटा और सेमी ऑटोनमस स्टेटस जम्मू कश्मीर का रिवोक हुआ, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो किसी भी तबके के हों, दे आर सफरिंग एवरी डे, दे सफ़र। क्योंकि आप खुद देखते हैं यहाँ पे बाबूडम चल रहा है, यहाँ से ऊपर से लाके लोग हमारे ऊपर बिठाए हैं जो एज वाइस रॉय की तरह फंक्शन करते हैं, उनकी यहाँ कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वी आर हैप्पी इन द सेंस, वी आर ग्लैड कि अब जो लोगों के मसाइल हैं उनको रिड्रेसल मिलेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, यहाँ अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। लेकिन
हम वो रियासत हैं जिनका अपना स्पेशल स्टेटस, अपना झंडा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती थी। तो वहाँ से अब यूटी का सफ़र हम सब जानते हैं, हमें डिसएम्पावर, डिसइनहेरिट, डिसपोजेस करने के लिए इनने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये इलेक्शन जो अनाउंस भी किया उसका बिल्डअप मुझे बहुत अजीब लगा। हर एक इंडियन स्टेट में इलेक्शन होता है लेकिन कहीं भी इतना आप उसे ब्लो अप नहीं करते हैं जैसे आज किया। तो वी वेलकम दिस मूव, बट ऑब्वियसली मेरा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि जिस स्टेट का अपना स्पेशल स्टेटस था उससे आपने हर एक चीज़ छीन के अब आप ऐसे जताना चाहते हैं कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी रोबस्ट डेमोक्रेसी। तो आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया। हर एक डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट चूज़ करें। सो मैं यही आपसे 2-3 चीज़ें आके यहाँ कहना चाहती थी। देखिए, मैं और एक चीज़ कहना चाहती हूँ। मेंबर पार्लियामेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर आगा रूहुल्लान असेंबली इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले कत करान वोनमुत जे यदवे यूटी मजीम इंतखाब अमल मज अन्न सत लूकन ज्यादा राहत वातन ताहम हेकन यमो इंतखाबों सत पन तिम नुमाइंद चरित युद्ध जन तिम यमन पन मुश्किल वनन। जो इलेक्शन हो रहा है ये उस असेंबली के लिए हो रहा है जिसे डिग्रेड किया गया है, जिसके इख्तियारात छीने गए और जो आईनी हैसियत थी इस असेंबली की वो इससे छीनी गई है। तो अब चूंकि इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है, आज ऐलान हो चुका है, मेरी उम्मीद यही होगी कि जो इस अवाम के साथ चोरी की गई, वो जो इख्तियारात, जो वकार इस अवाम का छीना गया और इस इदारे को जो डिग्रेड किया गया, इस इदारे की जम्मू कश्मीर असेंबली की तशख़्ख़ुस को, इसके हुकूक को, इसके इख्तियारात को बहाल किया जाए और अपनी नौयत में इसे बहाल किया जाए ताकि ये सही तरीके से अपने अवाम की नुमाइंदगी करे। इस वक्त अब ये जो इलेक्शन ऐलान हुआ है ये सिर्फ एक चीज़ का इलाज है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम समझती है और देखती है, तजुर्बा किया है कि ये इस रियासत की बागडोर, इस रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों के हाथ में है जिनका इस रियासत के लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो इस रियासत के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, जो अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है, जिनका कनेक्ट नहीं है इस रियासत के लोगों के साथ। तो वो अपनी मर्जी से कवानीन बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऑर्डर्स इजरा करते हैं और इस रियासत को अंधेरे में धकेला है और इस रियासत के अवाम को मुश्किलात में धकेला है। इस इलेक्शन के ज़रिए कम अज़ कम ये उम्मीद रखी जा सकती है, इसीलिए अवाम भी इस इलेक्शन का इंतज़ार कर रही थी कि कम अज़ कम इस एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील करके अपने नुमाइंदे वहाँ पे बिठाए और जिनके साथ अवाम का राब्ता हो, जो अकाउंटेबल हो, जो जवाबदेह हो लोगों के सामने। तो कम से कम उस तरह के लोग बागडोर संभालना शुरू करें जिससे शायद एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से या कुछ हद तक अकाउंटेबिलिटी के हवाले से लोगों को एक उम्मीद लगे, एक रास्ता खुले। ये कम तरीन उम्मीद है इस असेंबली इलेक्शन से, मगर जो इस इलेक्शन से जो हकीकी उम्मीद होनी चाहिए थी वो ये है कि हम अपना कानून खुद बनाए, अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाए, इस रियासत को चलाने का तर्ज अमल हमारे हाथ में हो। वो तभी मुमकिन होगा जब इस असेंबली की तशख़्ख़ुस को, इख्तियारात को 370 के हवाले जो नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तहरीगेम इलेक्शन कमीशन के फैसलों खैर मकदम करान वोनमुत जे इंतखाब अमल मज अन्न अन सठा जरूरी युद्ध जन जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन राहत वात ये जन तिमो लूकन अपील कर तिम गन इंतखाबन मज बढ़ित तो बोलियत हिस्स निन। देर से ही सही लेकिन ऐलान फाइनली किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। चुनाव होने वाले हैं जैसा कि आज कहा गया, शेड्यूल भी मुकर्रर हुआ, अनाउंस हुआ। काफ़ी देर से इंतज़ार था इस ऐलान का और जैसा कि हम सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार बार यकीन दहानी कराई थी, ऐलान किए कि अमन अमान है और नॉर्मलसी हर जगह नज़र आ रही है। पार्लियामेंट्री चुनाव के बारे में भी काफ़ी बड़ी चर्चा हुई, ह्यूज टर्नओवर, लेकिन फिर भी इलेक्शन के बारे में इत्मीनान नहीं था आम लोगों को, क्योंकि आज तक डिले काफ़ी हुआ। 2014 में चुनाव हुए थे और उसके बाद आज तक असम्बली नहीं रही जम्मू कश्मीर में 2018 से लेकर आज तक। बहरहाल
आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डेट्स का ऐलान किया तो मुझे उम्मीद है कि खुशी की लहर होगी पूरे जम्मू कश्मीर के रीजन में। आवाम ने एक राहत महसूस की होगी। हता कि ये बड़ा ऐलान इस लिहाज से नहीं क्योंकि हमारा दर्जा जो है वो घटाया गया, स्टेटहुड नहीं है, यूनियन टेरिटरी में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई दरवाज़ा खुला नहीं, इसीलिए एक बड़ी राहत है। अफसरशाही ने बोलबाला कायम किया था हमारे जम्मू कश्मीर में और हर सतह पर मनमानियाँ हो रही है, हर सतह पर शमाई नहीं हो रही है। कान बंद है सरकार के, अफसरों के, और जो अफसर यहाँ के नहीं, यहाँ के कैडर के नहीं, पुलिस में या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, अक्सर ऑफिसर्स बाहर से। अभी आपने तबादला जो किया गया वो भी देखा होगा, उस पर भी उंगलियां उठने वाली हैं, हमें उम्मीद है। और पता नहीं क्या कुछ कर रही है ये इंतज़ामिया। तो इस लिहाज से इलेक्शन का ऐलान बज़ात खुद एक बड़ी राहत है। मेरी पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर इमरान रजा अंसारियन असेंबली इंतखाब अमल मज अन्न खैर मकदम करान वोनमुत यह रच कत, ताहम तिमो वोनमुत अमि ब्रोह LG मरकजी सरकार तरफ मजीद मजबूत करने आमत यम प्रेथ अख मायूस सपदमुत। बात है, हमारा हमेशा से ये रहा है कि इलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन इस साथ में हमारे को ये गिला है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये एक किस्म के आई वॉश हो रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए हम कश्मीर में इलेक्शन कर रहे हैं, जो पावर्स जो ऑलरेडी इन्होंने गवर्नर को दे चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिटिकल जो कल गवर्नमेंट बनेगी उनके हिस्से में क्या आएगा ताकि वो कश्मीर का मदावा करें। वो क्लियरिटी भी अगर मिल जाती, चूँकि अच्छी बात है कि इलेक्शन हो। बाकी आप मेरे एडवोकेट साहब से बात। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तरुण चुगन खैर मकदम करान वोनमुत यह सही फैसले तो भारतीय जनता पार्टी प्रेथ विज इंतखाबन मज हिस्स निन बापत तैयार। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव आयोग का, इंस्टीट्यूशंस का, लोकतंत्र का सम्मान करती है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। हम विश्व की नानी दादी हैं लोकतंत्र के मामले में। और चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट सम्मानित संस्था है जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश चुनाव का इतना बड़ा संचालन कैसे किया जाता है वो समझते हैं। और निश्चित रूप से एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते जम्मू कश्मीर के चुनाव की जो भी घोषणा होगी भारतीय जनता पार्टी इसमें भागीदारी करेगी। चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।